Yes, bete. So now we are going to start with dictation words of lesson 3, right? It is, acha, first of all, who will tell me the name of that chapter? Subhanshu, beta, what is the name of that chapter? Lesson 3 का नाम क्या है? Ma'am, yes, Robinson Crusoe discovers a footprint. Again? Robinson Crusoe discovers a footprint. Okay, okay. Just mute yourself. Okay, ध्रुविका, क्या नाम है बेटा? ध्रुविका. Robinson Crusoe discovers a footprint. Okay, ठीक है. यजत, क्या नाम है बेटा? Ma'am, Robinson Crusoe discovers a footprint. Robinson Crusoe discovers a footprint. ठीक है, ये चैप्टर का नाम. Okay, चलो. अब now be ready to type in chat box. First, you are to write spelling of imagination. Quickly, imagination. Spelling of imagination. ये हमने चैप्टर में पढ़ा था. आपको वर्ड था वहां पे. Very good, very good. Yes, right. So the first word is imagination. Right? First word is imagination. अच्छा, imagination का meaning क्या है? Meaning of imagination. Quickly type in chat box. Quickly type in chat box. I told you the meaning. That is why I told you to keep your books aside. Books नहीं खोलनी. Let me check. आपने ध्यान से पढ़ा है next day या नहीं? Very good, very good, very good. Okay, good. शाबाश. So it is creation of mind. हमारी अपनी thinking जो तो हम खुद assume करके बैठे, हमने खुद create किया. Okay, so it is creation of your mind. Very nice. हाँ जी बेटा. Second word is frightened. Spelling frightened. Frightened. Okay, good, very good. ध्यान से लिखने frightened के spelling. F-R-I-G-H-T-E-N-E-D. N-D नहीं बेटे. N-E-D. So its right spelling is F-R-I-G-H-T-E-N-E-D. Frightened. Frightened. Meaning of frightened? Meaning of frightened? Very good, very good. Afraid. Shabash. Very good, very good. तुम्हें याद है, याद है. चलो जी. Third word. Third word is protection. 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 Okay. Very good. ठीक है. P-R-O-T-E-C-T-I-O-N. P-R-O-T-E-C-T-I-O-N. Protection. Meaning of protection? Meaning of protection? हाँ जी. Meaning of protection बेटा. बेटे to save someone नहीं आएगा. वो protect का हो. Yes, protection का मतलब safety. Protection एक noun है ना. So it means safety. Okay. Fourth word is investigate. Investigate. जल्दी से spelling. शाबाश. बेटा safety के ऐसे F-E-T-Y होता है. Investigate. Very good, very good. Yes, investigation नहीं बेटा, investigate. C-A-T-E नहीं, G-A-T-E. So it is investigate. Investigate. Okay. Meaning of investigate? Meaning of investigate. Yes, yes. It is बेटा examine में E-X-A-M-I-N-E. E भूलना नहीं है. Okay. To check, to examine. Yes. ठीक है. Next word. Inhabited. Inhabited. ये last word था. ठीक है. आपके chapter में last word था. The island was inhabited. So inhabited. Very good. Good. I-N-H-A. Inhabitat. बेटा habitat नहीं मैंने बोला. Inhabited. It is I-N-H-A-B-I-T-E-D. Inhabited. Meaning of inhabited? Meaning of inhabited. Okay. Occupied. Occupied. Dwelled. आपकी बुक में ये meaning दिया हुआ है. Occupied. Dwelled. It means
somebody lived there. तभी लास्ट वर्ड था ना, ये लास्ट सेंटेंस दिया हुआ था चैप्टर में. The island was inhabited. Why? Because initially Robinson Crusoe felt that he is the only one who is there on that island. तभी उसको डर था ये फुटप्रिंट कहाँ से आया. तो लास्ट में उसने कंक्लूजन ये निकाला कि the island was inhabited means उसके अलावा कोई और भी उस आइलैंड पे रहता था. राइट? ओके जी. हाँ जी. सो सिक्स्थ वर्ड इज बिगिनिंग. बिगिनिंग. ओके, बिगिनिंग का वर्ड लिखते टाइम ध्यान देना है. वेरी गुड. BEGI double NING. वेरी गुड. डबल एन डालना बेटा. मीनिंग ऑफ बिगिनिंग. बिगिनिंग. मीनिंग ऑफ बिगिनिंग. हाँ जी. बिगिनिंग का मतलब वेरी गुड स्टार्ट. यस, इट वाज अ नाइस बिगिनिंग. इट वाज अ गुड स्टार्ट. ओके, वेरी गुड. Seventh word is century. 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 This word is not given in your book. नहीं दिया हुआ ना, फिर भी हमने लिखवाया. ओके, सेंचुरी का मतलब सेंचुरी. CENTURY. सेंचुरी. हाँ जी. सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100. यस, सचिन तेंदुलकर हिट अ सेंचुरी. 100, 100 सेंचुरी 100 इयर्स के लिए भी हम यूज करते हैं. ठीक है. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी. नेक्स्ट वर्ड इज सेरेमनी. सेरेमनी. 8th word is ceremony. Very good. CEREMONY. Very good. I may need डाल देना. Ceremony. Ceremony का मीनिंग बताओ. मीनिंग ऑफ सेरेमनी बताइए. हाँ जी. मीनिंग ऑफ सेरेमनी. ओके, सेरेमनी फंक्शन, इवेंट. यस यस. सेरेमनी ओकेजन, कोई पर्टिकुलर ओकेजन, कोई इवेंट, दैट इज सेरेमनी. ओके, वेरी गुड. हाँ जी. नेक्स्ट वर्ड इज कमेंस. 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 वेरी गुड. बेटा ध्यान से, कमेंट नहीं बेटा. इट इज नॉट कमेंट, इट इज कमेंस. CO. वेरी गुड. यस, राइट. CO. कमेंट नहीं है बेटा ये गुरशान. इट इज नॉट कमेंट बेटा, कमेंस. कमेंस. ओके, मीनिंग लिखो. कमेंस का क्या होता है? आपको बड़ी बार नोटिस में हमने ये वर्ड यूज किया हुआ है. तो कमेंस का मतलब क्या हो? हाँ जी. हाँ जी बेटा. Commence. Yes, it is to start. Yes, your holidays will commence. Start होंगी, शुरू होंगी. Exams will commence from 15 September. जैसे कुछ भी हम बोलते हैं तो commence का मतलब to start, शुरू होना. Okay. हाँ जी. Next word is commander. 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 ओके बेटे, स्पेलिंग ठीक लिखो. अभी आप लास्ट वर्ड लिखिए. कमांडर. बिल्कुल ठीक है. इट इज COMMANDER. कमांडर. कमांडर क्या होता है पता है किसी को? कमांडर क्या होता है? व्हाट इज कमांडर? यस, लीडर. यस, वी कैन से वन हु कमांड्स, जो कमांड देता है. अदरवाइज ये पोस्ट भी होती है. ये एक पोस्ट भी होती है जो हमारे मिलिट्री में. ठीक है. तो कमांडर इज वन हु कमांड्स. अच्छा बेटा, ये वर्ड्स आपने ऐसे लिख लेने हैं. मीनिंग्स आपको मैंने बता दिए. आपने मीनिंग्स भी आपको पता होने चाहिए. राइट. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आपने ये डिक्टेशन वर्ड्स लिखने हैं, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि आपने फर्स्ट लेटर सबका जो है दैट यू आर टू राइट स्मॉल, नॉट कैपिटल. फर्स्ट लेटर सबका स्मॉल आएगा. कैपिटल लेटर से डिक्टेशन वर्ड नहीं लिखना. ओके, आपने स्मॉल लेटर से लिखना डिक्टेशन वर्ड. राइट. इज इट ओके? इज इट ओके? सबको मीनिंग सबके क्लियर हो गए हैं? सबको ठीक है, क्लियर है ना? ओके बेटे. हाँ जी. यस बेटे. सो द फर्स्ट मेक सेंटेंसेस में जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज एग्जैक्ट. ओके, एंड इट इज एन एडजेक्टिव. ठीक है.
अब आपको इसका यूज करना है इन अ सेंटेंस. So other than the sentences which I tell you, you are to tell your own sentences. What have you framed? Okay. The exact time of posting the letter was 4. Okay, 4 a.m., 4 p.m. Okay, very good. The exact time of this party is 5 o'clock. Please join the meeting. Okay, exact time. ठीक है. She gave the exact answer. बिल्कुल ठीक है. Okay, I joined the class at exact time. बिल्कुल ठीक है. It was difficult to tell his exact age. Very good, very good. So many sentences, so many sentences. I don't know the exact address. Very good, very good. So बहुत सारे आपने. Okay, I post the letter. बेटा हाँ जी, ये I post the letter at exact time. ठीक है. अब आई पोस्ट मीन्स अगर आप आई पोस्ट लिखते हो तो इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो मैं पोस्ट करता हूं. जबकि आप बताना चाह रहे हैं मैंने पोस्ट किया. अगर तो आप बताना चाहते हो फिर आपको ऑलवेज आएगा कि आप रूटीन में ऐसा काम करते हो. ठीक है. तो आपने मैंने एग्जैक्ट टाइम पे लेटर पोस्ट की, तो यहाँ पे आप लिखोगे आई पोस्टेड. ओके, आई पोस्टेड. ओके, अब आई don't know his exact age. इसकी एग्जैक्ट एज क्या है वो मुझे नहीं पता. इसकी एग्जैक्ट का यहाँ पे मतलब क्या है कि सही. ठीक है, जो सही एज है, सही एड्रेस है, सही टाइम, तो इट इज एग्जैक्ट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एग्जैक्टली. अब एग्जैक्टली ये क्या होगा? इट इज एडवर्ब. इट इज एडवर्ब. हाँ जी, एग्जैक्टली बोलिए अब इसका. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल. माई क्लास स्टार्ट्स एग्जैक्टली एट 11:50, बट समटाइम्स वी हैव सम नेटवर्क इशू, तो 2-4 मिनट कई बार लेट हो जाती है. सो एट दैट टाइम प्लीज डोंट स्टार्ट मेकिंग कॉल्स. ओके. हाँ जी बेटा, गुड, वेरी गुड. We have to reach Shimla exactly at 10. Okay, it's exactly 9 o'clock. Okay, 9 o'clock. मेरी घड़ी में अगर आपने ये बताना है मेरी घड़ी में exactly 9 बजे हैं, then what will be the answer? हाँ जी बताइए बेटा, type in chat box. Question for all. मेरी घड़ी पे exactly 11 बजे हैं. So what should be the right sentence here? ओके ओके, हाँ जी मुझे इसका बताइए बेटा. टाइप इन चैट बॉक्स, मेरी घड़ी पे एग्जैक्टली 11 बजे हैं. बताइए. वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड. 2 आंसर्स आए हैं. ओके, एंड आई थिंक ये कॉपी पेस्टिंग हो रही है, बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस में जो सेंटेंस शुरू किया है गया दैट इज स्टार्टेड विद स्मॉल आई एंड अदर्स आर आल्सो डूइंग इट. मतलब किसी को नहीं पता कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल करना है इट का. ओके, इट्स एग्जैक्टली. वेरी गुड, आपने इट्स का यूजेज अच्छा किया बेटा, सूक्ष्म. गुड. इट्स एग्जैक्टली 11 o'clock, नॉट इन माई वॉच, नॉट ऑन माई वॉच, बाय माई वॉच. ओके, बाय माई वॉच. ये आपको पहले भी बहुत बार बताया है, घड़ी पे टाइम के लिए हम इन या ऑन माई वॉच नहीं यूज करते, बाय माई वॉच करते. ओके, सो इट इज द मीटिंग will start exactly at 11. ठीक है जी, इज इट ओके? ओके बेटा, हाँ जी. सो ये 2 वर्ड्स आपने बेटा बस टाइम के लिए ये ध्यान देना है आपने कि टाइम के लिए इन माई वॉच, ऑन माई वॉच नहीं, बाय माई वॉच लिखना. ओके, हाँ जी. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट. अभी मैंने जब आप लिख रहे थे वर्ड्स तब मैंने बताया भी था कि प्रोटेक्ट विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट. प्रोटेक्ट क्या होगा? यस, इट इज फॉर. ओके ओके, बचाना, टू सेव. हाँ जी,
बताइए, वेरी गुड, बड़े सिंपल, यस बेटे ऐसे ही छोटे से सेंटेंसेस बनाया करो, वेरी गुड। I can't protect you, we should protect animals, very good. Okay, rib cage protects lungs and heart, very good, very good. Knowledge of other subjects also. Okay, okay, mask protects, beta protects, mask एक है तो protects आएगा, protect नहीं आएगा. Okay, very good, very good. What? Please don't type sorry, sorry. Okay. Dogs protect the house. Raincoat protects us. बेटा ये देखो गलती क्यों कर रहे हो? अब एक को जब मैंने बताया बाकी क्यों नहीं सुन रहे? जब आपका बेटा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो रेनकोट प्रोटेक्ट्स, यहाँ पे एस आएगा, प्रोटेक्ट नहीं आएगा. रेनकोट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम rain. Okay, तो rib cage protects our lungs and heart. एक है ना rib cage. तो जब ये ध्यान देना है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्रेजेंट में जब लिख रहे हो तो वर्ब के साथ एस आएगा. ये गलती बहुत बड़ी गलती होती है, और एक सबसे बड़ी गलती करते हो जब आप ऑलवेज यूज कर देते हो ना, फिर उसके बाद वर्ब के साथ एस लगाना भूल जाते हो, वो गलती नहीं करते. वेरी गुड. हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्शन. नेक्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्शन. अब प्रोटेक्शन क्या है? इट इज अ वेरी गुड नाउन. शाबाश, एन आ गया. सो प्रोटेक्शन इज नाउन. हाँ जी, मतलब आप सबने अपने सेंटेंसेस बड़े अच्छे बनाए. वेरी गुड. ओके, बेस्ट आंसर. चैप्टर में भी है. Okay, he asked police for his protection. Okay. Ram prayed for his protection. Okay. Robinson Crusoe also prayed for his protection. ये पढ़ा था हमने चैप्टर में, ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था बुक्स अपनी पास रखो अपने साथ, वहीं से मिल जाने सेंटेंसेस, ध्यान से. Okay, we take medicine for protection from diseases. Okay, okay, he carries a gun in. Okay, she carries a gun in her bag for protection. Oh, very good. बच के रहना. हाँ जी. Army gives protection to our country. Very good, very good. Mask gives, फिर mask के साथ give. बेटा फिर mask के साथ give लिखा है आपने. सचिन, please be careful. Mask gives us protection from diseases. Okay, so diseases. बेटा ये देखो, मास्क एक है, गिव्स आएगा, गिव नहीं. मास्क हमें प्रोटेक्शन, हमें बचाता, हमें बचा दे करता है, ठीक है, बीमारियों से हमारी रक्षा करता है. तो यहाँ पे गिव्स आएगा, ठीक है. हाँ जी. नेक्स्ट वर्ड इज बेटा कवर. कवर एज नाउन. अब देखो कवर एज नाउन बेटा, ये कवर एज नाउन एज इट इज यूज्ड इन चैप्टर, तो ये शेल्टर भी हो सकता है, ठीक है. अदरवाइज जो हमारी बुक का कवर होता है, नया कलरफुल कवर चढ़ाते हैं अपनी नोटबुक पे, बुक पे, उस वे में भी हो सकता है. हाँ जी. Yes, Robinson Crusoe ran for cover. I bought a new cover for my notebook. Very good. Okay, my friend ran for cover. Okay. Animals ran for cover. He ran for cover. Okay. We should ran. बेटा should के साथ first form आती है. We ran for cover as it was raining heavily. Okay. तेज बारिश हो रही थी, इसलिए हम शेल्टर के लिए भागे. इस वे में वी शुड के साथ बेटा सेकेंड फॉर्म नहीं आती, शुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है. ओके, सो जैसे कवर किसी चीज का भी हो सकता है, सो यू कैन राइट इट. आई बॉट. बेटा म्यूट योरसेल्फ, बेटा म्यूट योरसेल्फ. आई बॉट अ न्यू कवर फॉर माय मोबाइल.
my mobile. ठीक है, I bought a new cover for my mobile. Okay जी. Next word is cover as verb. Cover as verb. हाँ जी. Okay, she covered. She covered the bowl with plate, with the lid. Okay. She covered the microwave properly. Okay. यहाँ cover the microwave properly. इसको cover कर दो. Very good. Seventh word is imagine. 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 So it is कल्पना करना, किसी चीज को इमेजिन करना, किसी चीज को इमेजिन करना, किसी चीज के बारे में सोचना, कुछ क्रिएट करना, टू क्रिएट समथिंग इन योर माइंड. सो इमेजिन का इमेजिन एज वर्ब. हाँ जी बेटा बोलिए. नो वन कैन इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. बेस्ट yes, best sentence. Really, it is very difficult to imagine life without water. Okay, so we can't imagine life without water. Okay, so we can't imagine life without water. Okay, Anji. Now eighth is imagination. Imagination. अब imagination क्या है? Creation of mind. It is creation of mind, so it is a noun. Okay, हाँ जी. Imagination. Very good. It is actually right. Children have very creative imagination. Okay, her imagination is very unique. Yes. Very good. Very good. हाँ जी. I used my own imagination to written a story. Okay, your imagination is wrong. His imagination made him a writer. Very good, very good, very good, very good sentence. His imagination made him a writer. Very good. So beta, this is how you are to write dictation words and make sentences, and I appreciate you all. Really, I'm very happy. आपने बड़ा अच्छी तरह से actively you participated. You gave me variety of sentences. Very good. Now you are able to create your own sentences. Very good. So like this, always you are to keep your book also with you. Take help of dictionary also, right? So beta, this is how you are to write dictation words and make sentences. Okay, now for question answers quickly. Okay beta, हाँ जी. So question answers जो हैं आपके, वो भी आपके साथ बच्चे शेयर किए जाएंगे. So the first question, जल्दी से, who will tell me what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint? हाँ जी. किस चीज ने उसको बताया कि वो जो जमीन पे जो निशान था वो एक पैर का निशान, वो कैसे पता चला? यस, नाउ मिसबा. हाँ जी मिसबा बताइए. अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर. First, can you speak the question again? First question in your book, it is given that it is what made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. Robinson Crusoe made think that the print on the ground was a footprint because it had toes, fingers, and every part of foot. Yes, because it had toes, heel, every part of a human foot. That is why he thought. बेटा अब क्वेश्चन में what made Robinson Crusoe think आया. ठीक है, तो जब आपने आंसर लिखना है, आपने रॉबिन्सन क्रूसो थिंक नहीं आएगा, थॉट आएगा. उसने सोचा. मैंने बोला था ना, चैप्टर आपका फर्स्ट पर्सन में दिया हुआ है.
बट आपके क्वेश्चंस देखो, थर्ड पर्सन आ गया ना, रॉबिन्सन क्रूसो, जिसके बारे में बात कर रहे हैं. फर्स्ट पर्सन आई, आपसे बात हो रही है, यू लिसनर, एंड थर्ड पर्सन इज दैट ही, शी और एनी नेम. तो यहाँ आपने जब आंसर लिखना है, हर क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन में डिड है तो आंसर में आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. Right? So this is how you are to write all the question answers. Okay, beta. So I